हाय हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग क्लास 10? स्वागत है आपका क्लास 10 मनोज झा सर के क्लास मैथ क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। और कैसे आप लोग बताइए? कैसे सब ठीक है? देशमतादनुपदीर्घनानि देहानि देहानसांसिनो चिदापिदं वर्गज्ञानतैवानिविदात्मयुक्तदाः देहानि सदा विदादा। हर समय दूर रहने का ये है। आप लोग खोजिएगा, सर्च करिएगा, इसका अर्थ निकालिएगा, पता चलेगा। हर एक every sloka has got its impacts upon your tissues of your brain. हम इस मुद्दा पर अभी नहीं बात करेंगे। This was simply about like passes upon wall and just to start from this 23 number of your real number chapter. We are negotiating the last is the ultimate result of the chapter, that is number real number chapter number 1. Here after so many things, topic 1, topic 2, thereafter your so many exam next time. Now we are negotiating exam question, MCQ, short answer, MCQs, short, very short, like that. Today we are going to start from 33 up to 32. Having done. So now today we are going to start. Okay. Ready, steady, go. And the question is here, and I have told many times whenever you start the class in my class, you always open the book in front of you whenever I will be reading the question, because I am not going to duplicate the question here. I will be going to lecture on it. So 33 question. What is the 33 question? Question is very similar to the number 80 of 20 number question of your topic 2 or something NCERT folder like that. Let's see here. I'm going ahead. Okay. The question is, the traffic lights are at 3 different roads. There are 3 different roads. Traffic light is here. One is here, one is here. Okay. 3 traffic lights are there. Just this is only for notion. We need to understand the fact. What is the way how you have to find out the solution. Simply for you to understand better. To understand the thing, quality understand. Okay. Here again. After crossing up, change after 3 different road crossing, change after 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. मान लो ये होता है, मान लो अभी ये हुआ, इसके 48 के बाद ये होता है, फिर ये 42 ये मालूम है, आपके इसके बाद होता है, 3 बार होता है, ये हुआ 48, 72 एंड ये हुआ 100। इसमें करना कुछ नहीं है, इस तरह का सवाल जैसे किसी सर्कुलर को तुम लोग जब साइकिल से घूमने लगते हो, 2 या 2 से अधिक आदमी एक बार एक साथ निकलते हो, या मान लो कोई इनाम बचता है, ऐसा भी सवाल मैंने बनाया। तो तुमने क्या किया? Whatever done in the previous chapter, the previous sums, simply like that you have to find out the LCM, and here also you are finding out the LCM. What is the LCM? C, and then again you add to the time when it was ranked all together at the time. The time was what may be the time, no problem, but you have to add the HCF of these. So this is 48 seconds. This is 48. This is 48. Another 72 seconds. All are in seconds. Okay. I am not writing the unit. Just I am writing the date. Now you have to find out it. LCM. No, sorry. No, LCM. This common multiple.
because the least common multiple can be divided by all these three, by 48 also, by 72 also, and by and then 8 also. So you have to find out the LCM, and that will be your answer. So 48 at first by factorization for the offer. Here is the by factorization. 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2. That means 2 to the power 4, 3, 48. Now, 72, 2 3 ja, 6, 1, 2 6 ja 12. Again, 2 1 ja, 2, 1, 6, 2 8 ja 6. Again, 2, 9 ja, again, 3. So, this is your 2 to the power 3 into 3 to the power. Okay. And your third one is 108. For this, if you find out the primary screen way, you have the 10 to 4 the 8. Now, the 4 1 to 7, 2 7, 14. Okay. Now, this 27 cannot be divided by 2 more. Now, you have to use 3. 3 9 are 27. And 3 figure, this is your factorization 2 square into 3 2. This is for 108. We have got the LCM. We have got the prime combination of all these three. Now you have to calculate the LCM. What will be the LCM? LCM remains to be the highest factor digits multiply digits altogether. So write down which one are the highest factor. Here is 2, here is 2, here is 2. But 2 has got a maximum power of 4 here. So you will write 2 4 only. LCM is equal to 2 to the power 4 multiplied by. Now you have to negotiate with 3. So 3 has got a maximum power of 2. No, maximum power of 3. It is found out here. So this 3 to the power 3 is equal to your LCM 2 to the power 4 and 2 to the power 3. What is the result altogether? When you will be multiplying 2 to the power 4, 2 into 2 into 2 into 2 into 3. Into it, if you cannot 9 to the 18, 36, 22. And then 44. Yes, I'm doing something wrong. Yes, here, if I am doing something wrong, no, right now, 33. What happened? I have to stay. 33, no? That is the second 48, 72 and 108 second. Yes, if they change 7 will be at 7. If they change 7 will 7, I am not okay. What is the LCM? Then find out. LCM became 2 Nachar, solo that become bar. Or 48, 7 to 208. So I am not finding out the LCM correctly. Why? LCM.
No, I am not multiplying the F. I am committing decision. Okay, okay. No, no, LCM. I am followed. It is LCM. Something like that. It is, no. You have committed mistake. Every number should be multiplied. No. Okay, sir. You will do right on here. 2, 2x square into this, that is 2. Okay. This is 2. This is 4 and 3. This is 2. So 48, 148 you will write 48 is equal to 2 to the power 4 into 3. Okay. Upon 72 you will write 2 to the power 2 or 3 to the power 2. Oh, 2 to the power 3. 3 and 2 to the power 3. You must have 8. 8 and you can write, you know, 72. 72 that is equal 2 to the power 3 and it will not be 3 to add. No, you will not have number 4 that is again now 4 3 R tapais seperti sama ada yang itu ada satu part kita perlu besinya दो जगह बोलो चार फुट कैसे आया 2 24 2 12 2 36 2 तीन के एक ही है दो तीन कहाँ है दो 4 अब एक तो 48 है ना इसका बोलो तो बोल दिया इसका बोलो ना दो 4 8 24 के बाद 30 पर है तो टू दी पावर 3 80 टू दी पावर 2 है अच्छा 2 to the power 2 है ये तो 2 to the power 3 ये है अच्छा इसका हमने एक तक मार्क किया ना हमने का ना हमने करके मेजर हुआ था 2 2 3 3 ठीक है दूसरा 4 तो ये बात एक सब है कितना है ये और फिर ठीक है ये 72 का है ये 72 का है और ये हमने देखा टू स्क्वायर इनटू 3 है ना अब देखो इसमें क्या सब होगा भैया सबसे बड़ा वाला 2 4 है एसीएफ क्या होगा 2 4 में लिखेंगे ठीक है ठीक है तो 4 लिखेंगे और क्या लिखेंगे तो 4 तो लिख दिए ना अच्छा 3 में क्या होगा 3 में स्क्वायर है इसमें एक और कितने लिखेंगे क्या लिखेंगे और गुना करो तो चीज से गुना नहीं करते भाई ठीक है लिखेगा 27 में 8 तो 27 में 16 होना चाहिए ना एक साथ 4 है ना एक की पावर 4 है कितनी बार 2 है अच्छा ये वाले तो 2 और फिर ये हिसाब लगाते हैं 10 दिमाग से 1 और दूसरे के बारे में 82 नंबर 3 और x मतलब 13
ये गाना है ये 432 432 सेकेंड। तो 7 बजे बजा था, 7 बजे बजा था 432 को 60 से 12 देके मिनट में, ठीक है 432 हुआ। अब नाली घटी, घटना घटी 432 सेकेंड हो गया इसका किलो का इसके 48 का बाद में काम सेकेंड है पहला सेकेंड लिखा। अब इसको भागा दे दो 60 से तो क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। कितना मिनट हो गया, काटो 2 से 32 के साथ नाचा फिर दूसरे भी पढ़ना 3 से कटेगा 9 1 10 इतना बढ़ा 36/5 ये कितना हो गया 36/5 5 से 30 और 5 से 35 ये सब जल्दी करते हैं 5 से 35 का 36 1/5 समझ गए ना। मतलब 7 बजे बजा था 7 AM में बजा था और प्लस कितना करोगे 7 मिनट और 1/5 को सेकंड से करेंगे 7 से गुणा करो तो 12 सेकंड हो जाएगा 5 बार करो 12 सेकंड, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड। तो टाइम लगना नहीं था, बहुत जल्दी, ठीक है। ऐसे में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ओके तो आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। मेरी सवाल क्लियर, जो 24वां सवाल को समझते हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटा भी बड़ा होता ही है, बिल्कुल नियम नहीं है तो ऐसे तो अपन है ना क्या है it is proved that 6 minus 4 root 5 is a rational number. 4 roots देखने में तो गलती करते हैं, 4 इतना भारी है ये जो 6 minus 4 root 5 6 minus 4 root 5 ये rational। अच्छा इसमें तो टेक्निक हम बता दिए थे ना, वही सब चलेगा। तो कैसे बनाते रूट 5 दे रैशनल नंबर, ये सब जानता है इंडिया में सब। इवन रूट 5 इज रैशनल, इवन इज ए इरैशनल, इज ये कैसे होगी, इज एन होगा ऐसे तो देगा इरैशनल। चलो ठीक बात खत्म हो, आगे बढ़ते हैं कैसे बनाएंगे देखो, ठीक है आगे बढ़े। बरो क्या मैं सवाल है भैया 35 से शुरू किया 24 है। अब कुछ मत करो, तुम 35 तो मानोगे। लेट 6 minus root 5 equal to 2y, क्या करोगे रूट 5 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 6 और इंप्लाई 6 minus p/q equal to रूट 5 है ना। इतना इजीली इसको कर देंगे देखो। अब इसके एलसीएम कुछ नहीं है, बटा कुछ नहीं है, तो 1 है, इसका मतलब 1 से बढ़ा दो 2 में q और 6q माइनस अब रूट 5 p/q के फॉर्म में अब ये एलएचएस है यहाँ पर। अब दोनों को बराबर में मत ही ना, एलएचएस को लेने से लेकिन नहीं है ऐसा, ये है रैशनल और ये इरैशनल हम जानते हैं। Thus root 5 becomes rational बन गया ना, 2/3 के फॉर्म में आ गया ना, 2/3 आ गया, becomes a rational number
which is contradictory, which is a contradiction नहीं होना चाहिए। नियम के हिसाब से गुड फाइव को इरेशनल निकला था, लेकिन हम लोगों ने माना था जो आवर एग्जाम्पशन वालों हम लोग जो माने थे सही नहीं माने थे, सही मानते तो फिर वो तो इरेशनल ही प्रूव होता ना जी। मैंने पहले एक दिन बताया था क्लास में कि कभी भी इसको रैशनल ही क्या है, रैशनल प्रूव करके बाद बोला जाता है जब हमने गलत माना था, गलत प्रूफ साबित कर दिया, इसीलिए वो सही तो बोल ही जाएगा। तो इसे भी बोल सकते हैं या इस तरह भी उल्टा तरह से बोल सकते हो ये कंट्राडिक्टरी है, इसीलिए हमारा जो एग्जाम्पशन था उसको आप एग्जाम्पशन वाक्यों कंट्राडिक्टरी कभी भी बराबर के इधर जो हमारे 1+2 है देखा कि 3 के आसपास ही कुछ होना चाहिए तभी तो बराबर होगा, नहीं तो बराबर क्या मानेगा, तो ये बराबर नहीं है, इसीलिए ये कंट्राडिक्टरी चीजें करना ऐसा सो आवर तो आवर एग्जाम्पशन वाक्यों ठीक है। तो तुम लोग जानते हो जब रूट 5 हो गया तो रूट 5 क्या प्लस या माइनस फ्रॉम थ्योरम होता है ना, ये अपने डोमेन में लाता है, ये क्लोज होता है, क्लोज होता है, ये रैशनल नंबर, ये क्लोज नंबर और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, ये फाइंडिंग समथिंग एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 6 करें ये रैशनल फ्रॉम subtracted irrational subtracted from rational, irrational है तो ये क्या होगा, will become as per theorem it will become from the theorem 6 minus root 5 also rational number। देखो नॉर्मली रूट 5 प्रूव करना चाहिए, इतना कर लिए नहीं कर लिए क्योंकि ये तो चरम से ही हो जाएगा, तुमको खाली करना है वही रूट 2 रूट 3 रूट 5, यही टेक्निक है जितना लोग कैसा भी सवाल है खाली चलाकी से कैसे बैठाना, देखो कैसे स्केलर ले आया इधर आ गया फिर बहुत बन गया खत्म खत्म हो इसको इतना तो लेकिन तो ज्यादा लगे तो जल्दी ठीक है क्या बात सर मैं सॉल्व दिस पॉइंट सही बात अच्छा ये कहता है चेक बना 50 क्या कभी नहीं होगा, ये चेक करना है। देखो भाई ये 34 खत्म हो गया, वेरी शॉर्ट में आ गया, शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हमको नहीं लगता है शॉर्ट आंसर डिफाइन क्वेश्चन बट क्या कहता है 15 can 15 be in that 0 कभी नहीं for any next for अब उतना नहीं लिखना है नहीं होगा तो देख लो, पहले एक लाइन में लिखता हूं ध्यान से सुनो मनीष, ध्यान दीजिए ये 15 है, 15 पर तुम 2 रखो 3 रखो 5 रखो कुछ भी रखो, यहाँ पे 5 ही है, 0 नहीं है, तुमको करना है तो प्रूफ कैसे करोगे, तो एक लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे टू इन विथ एनी नंबर the multiplication of two हम पढ़ना है ऐसे to end with 0 to end with नहीं होता है ऐड होता है, चलो आप लिखिए to end at 0 to end at 0 of a number of the product number, not the product number 1 its
products should be 5, 4, 5 and 2 यानी किस तरह का फैक्टर है 5 and 2 5 ये तो 5 होगा ना 5 और 2 अब इसके फैक्टर में रहेगा 5 स्क्वायर और 2 स्क्वायर लेकिन होना चाहिए यदि ऐसा नहीं होगा तो उसका प्रोडक्ट जीरो में नहीं होगा कहने का सिंपल बात ये है कि 5 को 2 से गुना करेंगे तो भी होगा यानी कि 5 और 2 अब इसको देखो तो 58 को तो कैसे लिख सकते हो 5 into 3 to the power n अब देखो ये हो गया 5 to the power n into 3 to the power n आपको होना क्या चाहिए था आपको ये तो सही है 5 बना दिया लेकिन ये रियल आने से क्या होगा इनका तो होगा 3 और से तो पहले 9 3 7 1 इस तरह कभी भी 2 लिया है तो 5 एक तो हमको मिल रहा है दूसरा 2 नहीं मिल रहा मैंने लिखा था थ्योरम में दोनों 5 और 2 पूछा है ठीक है तभी वो जीरो होगा तब गुना करेंगे तब ना 5 के 10 या 50 गुना चाहिए तो ये इसको फुलफिल नहीं करता बट 15 does not fulfill the requirement find factorization of 15n is neither is one of the prime factorization of it is not true 105 है लेकिन दूसरा तो 2 बढ़ाने की नहीं है ये 3 है it is 3 है it is 3 है so never will end at prove हो गया लिख दो प्रूफ खत्म बुझा रहे हैं तब आगे बढ़ते हैं प्रूफ पेन में इतना टाइम लगना से नहीं होगा ये चीज याद रखना कि भैया to read at zero of the product number its factorization should be 4 5 and 2 यानी 5 और 2 गुना दे तभी वो 0 से खत्म ये 15 एन में जब हम जोड़े तो देखते हैं 5 तो मिल जा रहा है लेकिन 5 वाला टर्म में तो जितना बार गुना करेंगे 5 ही आएगा लेकिन 3 जब गुना होगा तो 7 एक इस तरह से आ जाएगा तो 2 चाहिए 5 और 2 दोनों चाहिए बोल नहीं मिला तो बोलो नहीं मिला तो आगे बढ़ते हैं क्या बात 36 1 3 6 तब आगे बढ़े चलो क्लास 10 भाई आगे बढ़ते हैं भैया क्लास 10 वालों 36 अरे इसका फैक्टर निकालो ना 36 होता है इतना करके भाई टू का फैक्टर ले लेने के बाद चलो फाइल वैल्यू ऑफ a for which the given expression can factor so even is an even composite number अरे इवन कंपोजिट नंबर होने के लिए दो का उसमें एक जैसे इसमें था कि 0 होने के लिए चाहिए 5 और 2 तो इवन होने के लिए 2 उसका प्रोडक्ट चाहिए यदि होता है प्रोडक्ट ऑफ ओनली 2 का तो उसको हम निकाल लेंगे बट यानी कि नेचुरल नंबर फाइंड द वैल्यू फॉर n is the value 1 और which the expression is an even number अब इसको कितना से गुना करोगे तो इवन हो जाएगा क्या हो जाएगा तो इजी बात है कम से कम 2 से तो जरूर गुना जैसे वहां पर था इसके पहले वाला क्वेश्चन में तुमने आपने क्या देखा इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपने क्या देखा 5 और 2 दोनों चाहिए इसमें क्या चाहिए भैया इसमें 5 और 2 दोनों नहीं चाहिए ये तो चलेगा जब प्राइम नंबर को भी जब प्राइम नंबर की जरूरत आती है और नंबर का मतलब नहीं होगा जब 2 से गुना कर देंगे तो 6 बने पूरा इवन नंबर होना चाहिए या मान लो ये 4 है वो इवन ही है फिर भी 2 से गुना करेंगे तो इवन हो जाएगा ये भी इवन हो जाएगा कहने का मतलब वो इवन हो या ऑड हो फॉर एनी ऑफ नेचुरल नंबर और एनी मतलब क्या मतलब ऑड और इवन ब्रैकेट में ऑड और इवन और एनी आप इसलिए लिखे इसका मतलब दूसरा मत समझ फॉर एनी ऑफ ऑड या इवन ऑफ नेचुरल नंबर to make
इट्स प्रोडक्ट इवन, इसके प्रोडक्ट को मैंने गुना करने के बाद दोनों को दो है ना, दोनों में से एक्स और वाई मान लो, एक्स और वाई है, तो इसको गुना करने का, एक्स और वाई गुना करने के बाद बस इवन होना चाहिए। तो उसके लिए टू मेक इट इस प्रोडक्ट इवन one of its factor must be true। अब देखना है इसको पहले दो भाग में बांटो। इसका जो तुम्हारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला में जाओ, देखो अलजेब्रा में इसको इससे गुना करते हैं और उसका ऐसा फैक्टर निकालते हैं, गुना करने से जो गुना होगा वो हो जाए, पहले इसको गुना करते हैं, हो गया 4n², ठीक है, ब्रैकेट में रख है, और ये है 3n, n² प्लस 3n, क्या n² प्लस 3n माइनस 4, यही सब गलती करते हैं। देखो यहाँ माइनस 4 लिखा भैया, माइनस 4 लिखा भैया, ठीक से देखिए भाई साहब, -4 मैंने लिखा +4, कोई आप लोगों ने बोला नहीं, मनीष भी बोला नहीं, तो इच्छा भी बोली नहीं, यहाँ मैं तो गलती करता हूँ, इससे मेरा झगड़ा बढ़ जाता ना, तो आपको बोलना चाहिए कि माइनस होगा, माइनस फिर भी हम सही से नहीं लिख पा रहे, तो यही तो गलती है, तो माइनस, ठीक है, ओके। तो इसको गुना करने से हो गया -n², किससे, a को c से गुना करके a। अब इसका फैक्टर निकालना है, फैक्टर ऐसा निकालना है जो जोड़ने से 3n हो और गुना करने से, जोड़ने से 3n हो और गुना करने से, तो अभी तुम गुना की ac के बराबर, ठीक है, तो ac के बराबर गुना करने, तो इसको तुम यदि 4n माइनस n कर दो तो क्या होगा, 4n माइनस n क्या होगा, 3n हो गया ना, अब गुना करेंगे तो -4n² हो जाएगा, देखो पहले ये हो गया 4n, इसका मतलब इसको हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं, दोनों कंडीशन पूरी करते, याद रखना, अपने मन से नहीं तोड़ देना, 4n+2 ऐसे करने से नहीं होगा। तो इसमें से तुम्हारा इसका फैक्टर हो गया 4n माइनस 4n और into n, तो मैं प्लस 4n माइनस गुणा करेंगे तो -4n² हो जाएगा, और जब इसको प्लस करेंगे तो यानी कि माइनस करेंगे, यहाँ बोलती है ये भी चाहिए, तो लिखो इसको प्रूव इस तरह से, ये फॉर्मूला n² प्लस 4n माइनस 4, आप इस दोनों में n कॉमन ले लो तो बन गया n प्लस 4, बचे ना, इसमें n बचे, यहाँ -1 कॉमन ले लो, ये बच गया n प्लस 4, देखो ना, प्लस माइनस, अब ये दोनों मिल गया n प्लस 4, और n प्लस 4 ना, n प्लस 4 मिल गया, दोनों आई हो गया n माइनस 1, दो फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर्स हो गए इसका। अब इसमें से दोनों में से एक को क्या होना चाहिए, मैंने पहले लिखा है, it to be any natural number to make or any natural number even or odd to make its product even, natural number की गुणक को इवन बनाने के लिए one of its factor must be true, ये दोनों में से एक को दो होना चाहिए, तो ये तो नहीं होना है, n प्लस 4 2 करो, n बराबर क्या हो गया 2 माइनस 4 -2 हो गया, इसको रूट आउट हो गया, ये नहीं होगा, इसमें देखो क्योंकि -2 जा रहा है, -2 नहीं बोला है ना, चलो और यहाँ n - 1 बराबर 2 करो, तो n बराबर क्या हो गया 2 + 1, ये तो आंसर हुआ, यही आंसर हुआ, ये 2 होगा और ये 2 नहीं होगा, समझ गए ना, ये कुछ भी होना तो गोली मारो, ये जब 2 हो गया यानी कि n बराबर 3 लिख दोगे तो 3 घंटे कितना हो गया, और 2 नहीं हो गया, ये कुछ भी हो, ये प्राइम हो, ये इवन हो या ऑड हो, जब 2 से गुना करेंगे तो ये इवन ही हो जाएगा, एनी ऑड नंबर और इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 it becomes
इवन नंबर, ठीक है। 2 से गुना करो, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, गुना करने के बाद वो वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं 36वां सवाल, और ये शायद लास्ट में इस क्लास का समझ 36 गेमों में ज्यादा टाइम लगेगा, पता क्या आते हैं कि 36वां हो गया। 37वां एचसीएफ निकालो, 85 और 238 का भैया, 85 और 238 का, 85 और 238 का फॉर्म ऑफ 85m माइनस, तो बाद में निकालेंगे 238 में इसका एचसीएफ है, वैल्यू ऑफ एम निकालना है, वैल्यू ऑफ एम क्या वाट होगा हम निकालो ना, मतलब एचसीएफ 85 और 238 का एचसीएफ क्या सवाल है 37 37वां है। निकालो भैया कितना होगा, देखो एचसीएफ निकालो, उसका वैल्यू पुट करो, वहां निकल जाएगा 85 का ट्राई कैलकुलेशन को 5 से पार्टिकल 5 3 238 का फाइनल 7 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 85 इक्वल टू हो गया 5 इंटू 7, और ये 238 बराबर क्या हो गया 7 नहीं 70, सॉरी 70, और ये हो गया 7 14 इंटू 70, ये क्या हो गया 14 इंटू 70 नहीं हो गया ना, ठीक है। कोई कॉमन नहीं है, दोनों 5 शायद इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो कहीं कहीं कोई कॉमन नहीं हमको लगता है 17 को छोड़ के ये कॉमन है। एचसीएफ निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है, बात है छोड़ एचसीएफ तो इसको भी बना करेंगे, लेकिन एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बराबर हो गया 71, एचसीएफ 17 निकल गया। अब बात है इसको बैठा 85 एम माइनस 230 बराबर हो गया 17 के बराबर। इसके एचसीएफ क्या बराबर है, फ्रॉम द लैंग्वेज आप उतना लिखना नहीं है, 40 मिनट क्लास में जाने से बात करेंगे। तो ये बराबर कितना हो गया, इधर ले जाओ 85 एम बराबर हो गया 17 पहले से है, अब बराबर के उधर ले जाओ 278 को, हाँ 238 ना, हाँ 85 में 238 को 238 को इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, बराबर हो गया 245 10%। तो m बराबर क्या हो गया 255 डिवाइडेड बाय 85, 5 से काटो 5 से 25 और 5 से 5 5 से 5 3 5 से 5 17 किया है काम 3 से कर दिया, m बराबर 3 माने इसमें 3 रखो, देखो हो जाएगा 70, फिर लिखो 85 इंटू 3 कर दो तो 3 इज द आंसर। और भैया लास्ट चेक करो, यहाँ पर 40 मिनट करीब करीब होने वाला है, इसलिए मैं अब यहाँ कंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो ये आपका कहना यही है कि आज जैसे 33 से लेके मैंने 24 35 36 37 तक तो पता है 48 तक है, दो क्लास हो सकता है और उनमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब पोलिनोमियल में हम लोग चले जाएंगे, जल्दीबाजी करना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक से देखिए से आप कर पाते हैं अच्छा से, ठीक है। आशा करते हैं जो आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा, अच्छा से सीखे होइएगा, मेरी कोशिश कामयाब हुए होंगे, और मैं सदा कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों को कन्वेंशनल लेवल पे ही हो सकता है, मैं उतना बॉड नहीं पढ़ाता हूँ जैसा आजकल निकला है, लेकिन मुझे लगता है यही
सिस्टम पहले था और इसी को हम इसी से हम लोग आगे बढ़े। तो पहले आधार मजबूत करना है। वे कुछ भी हो, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास टेक्निक होना। साइंस तो बहुत आगे बढ़ के इसे कोई खबर नहीं। ठीक है, अब मेरे पास जो बोर्ड है इसमें आप लोग अच्छे से पढ़िए और जहाँ पे प्रॉब्लम है कभी बोलिए। ठीक है, ओके।